faculty OSD, and respected professors, and the guest speakers, and dear audience. Myself, Vidhi Darji. Myself, Jia Kaliparambil. Vivekananda Study Circle organizes seminar on Uniform Civil Code at Faculty of Law, MSU Baroda. Now, I would like to invite Shri Aditya Bareliwala, State Executive Member of ABVP, to do the introduction of the dignitaries. नमस्ते नमस्ते आप सभी को। मैं हमारे जो माननीय लोग यहाँ पे पधारे हैं उनका परिचय करवाना चाहूँगा। श्री गौतम भाई गामित, आप वडोदरा विभाग एवं पंचमहाल विभाग के संगठन मंत्री का दायित्व वहन कर रहे हो एबीवीपी। श्री द्रुतिबेन पटेल हमारे एबीवीपी का एक आयाम है, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, उसके प्रांत विस्तारिका है, उनका केंद्र वडोदरा है। श्री कांजी साहब हड़िया एबीवीपी वडोदरा महानगर अध्यक्ष का दायित्व वहन कर रहे हो और आपका प्राइवेट क्लास भी है, कॉन्सेप्ट प्राइवेट क्लास। श्री निशित भाई वरिया एनईसी मेंबर है, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर एबीवीपी में। श्री ब्रजभाई भट्ट वडोदरा महानगर मंत्री का दायित्व वहन कर रहे हैं एबीवीपी में। श्री ऋषिक भाई मकवाना हमारे एमएस यूनिवर्सिटी एबीवीपी एमएस यूनिवर्सिटी वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व वहन कर रहे हैं। श्री मिहिर भाई राठवा एबीवीपी एमएस यूनिवर्सिटी वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व वहन कर रहे हैं। श्री जयदत्त जोशी हमारे यूनिवर्सिटी जॉइंट सेक्रेटरी का दायित्व वहन कर रहे हैं। और साथ ही मैं परिचय करवाना चाहूँगा हमारे सबके प्यारे चहीते श्री उमंग मोदी सर, जो यहाँ पे पधारे हुए हैं। ओके, जैन सर को बुलाना चाहूँगा कि आप दीप प्रागट्य करें एवं कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्री कांजी साहब हड़िया। ओके, श्री नयन भाई कार और करिश्मा कार को भी मैं बुलाना चाहूँगा। Our Constitution is a ray of hope. H for harmony, O for opportunity, P for people's participation, E for equality. No man is above the law and no man is below it. Uniform Civil Code. The topic of the seminar is proposal in India to formulate and implement personal laws of citizens which apply to all the citizens equally regardless of their religion, gender and sexual orientation. Vivekananda Study Circle, the youth organ, needs your cooperation by participating with us and further grace the seminar. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad has been in the field of education since in the inception of 1949, connecting students with the national idea and striving for quality and cultured education. ABVP, which has been working for 75 years with Student Solution, is today the largest student organization in the world working for student interest and social interest. Along with the Vivekananda Study Circle under the Kaida Vidhi Karya, as well as these students, the organizers are also associated with the Students for Seva SFS, Students for Development SFD, Rashtriya Kala Manch, Ramat Gamat Gatividhi, Think India, World Organization of Students and Youth WSY. Now we would invite our esteemed speaker, Advocate Neeraj Jain, who is one of the leading
practicing advocate since last 32 years from 1901 and currently practicing at District Court Baroda and Gujarat High Court. He is a seasonal criminal practicing advocate, majorly dealing with serious criminal offences and is committed to find right solutions for good practice. He is Hindu Jagran Manch Gujarat Prant Land President. He has been full-timer in ABVP for 2 years. India's first judgment of triple talaq was given by him. Due to this proponent case, gun firing was done on him in 2002. We welcome you, sir, for sharing your presence with us. Now further and enlightening us on the seminar topic, Uniform Civil Code. Please take the command from here. आज के इस कार्यक्रम के विवेकानंद स्टडी सर्कल के मुख्य कर्ता प्रेसिडेंट ऐसे करिश्मा बेन कहार, उपाध्यक्ष श्रेय भाई ब्रह्मभट्ट, विधि संयोजक नयन भाई कहार, आदित्य भाई बरेलीवाला और विद्यार्थी परिषद के फॉरम के पदाधिकारी, भविष्य में हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ वकालत करने वाले भावी वकील मित्रों, वैसे तो कहा जाता है कि जो भी वकील होता है, हमारे सीनियर ऐसा कहते थे कि जो 25 इयर्स तक पढ़ते नहीं है और जीवन के 50 इयर्स तक जिनको पढ़ना होता है, जो पहले 25 साल नहीं पढ़ते हैं और बाद में 50 साल पढ़ने वाले लोग यानी वकील, हम उसी कम्युनिटी के लोग हैं। मगर आज की परिस्थिति बदल गई है। हम लोग ऐसा कहते थे कि वी आर द लास्ट बेंच के लॉर्ड है, ऐसा हम उस वक्त कहते थे। आज के स्टूडेंट हर वक्त पीरियड अटेंड करते हैं। इतना अंतर आ चुका है और लॉ में भी कैरियर बनाना लोग जानते हैं, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लॉ तुरंत ही जुडिशरी की एग्जाम होती है और जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हैं। मेरी बेटी भी जुडिशियल ऑफिसर बन चुकी है, यही फैकल्टी से 5 गोल्ड मेडल लेके। बेटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकालत करता है। यानी ये कैरियर, अभी लॉ प्रोफेशन कैरियर ओरिएंटेड हो चुका है। आज का जो विषय है उसी पर आ रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड। वी आर ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैं आज भी मेरे खुद को एक स्टूडेंट ही मानता हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? शुरुआत मैं वहां से करता हूं सीधी। अगर हमें उसका मतलब अगर पता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आज हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर बात आती है तो लोग क्या मानते हैं? अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी का सब्जेक्ट है, अरे ये तो हिंदूवादी का सब्जेक्ट है। कांग्रेस ऐसा कहेगी, अरे ये तो मुसलमान विरोधी है। कम्युनिस्ट आके ऐसा कहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी होना ही नहीं चाहिए। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात आती है, कोई कहीं पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई बात करता है, तो हम नागरिक बोले, सिटीजन ऑफ इंडिया बोले, उसके पहले पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो जाता है। और सबको ये ड्रामा क्यों करना पड़ता है? फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द वोट। हमारा वोट शेयर कम नहीं होना चाहिए, वोट शेयर बढ़ना चाहिए। और देश के नागरिकों का क्या होना चाहिए? उनको जो करना है करें, नागरिक जाए भाड़ में।
ये परिस्थिति है, और उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम हैं। हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हम ये पॉलिटिकल पार्टियों पर दबाव नहीं बना सकते हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। कारण हम नागरिकों को पता ही नहीं है। कई लॉ फैकल्टी के टीचर्स को भी पता नहीं होगा। मैं समझ के बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड न हिंदू है, न मुस्लिम है, न क्रिश्चियन है, न यहूदी है, न पारसी है। किसी के तरफदारी नहीं है, किसी के विरुद्ध में नहीं है। उसका अर्थ तो पहले समझो। हमारे यहां दो प्रकार के कानून है, ये तो सब मानते हैं ना। वी आर स्टूडेंट ऑफ लॉ। एक क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। ये जब समझ जाएंगे तो आप भी, ये जो आज मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं बोलने जा रहा हूं, आपको भी ये सब पता है। वही चीज आपके सामने रख रहा हूं, सीधा बिल्कुल स्पष्ट बात। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? पनिशमेंट आती है, सब्सटेंसिव ऑफ द लॉ। जो सब्सटेंसिव ऑफ द लॉ होता है वो क्रिमिनल में आता है, और हर एक लॉ में सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल, ये दो चीज आती है ना। क्या कौन सी केस में, कौन से उसमें क्या सजा होगी, पनिशमेंट होगी, या अन्य सब्सटेंसिव मतलब क्या होता है? तात्विक। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, हम ऐसा कहते हैं ना। तो एक तरफ आता है तात्विक, और तात्विक के आधार पर हाउ टू फॉलो द प्रोसीजर, यानी एक तरफ सब्सटेंसिव लॉ और साथ में प्रोसीजरल लॉ। उदाहरण के तौर पर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, वो सब्सटेंसिव लॉ है, और सीआरपीसी, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड, वो प्रोसीजर है। एक तरफ ये आता है। उसी प्रकार से सिविल में, सिविल लॉ चार बात पर आधारित है। आप सबने सीपीसी आया है, नहीं आया है? ठीक है, सीपीसी तो पता है ना क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड। तो एक तरफ सिविल लॉ, अबे यार क्रिमिनल की बात है कि जहां हम अगर कोई गलत काम करेंगे, किसी को पीटेंगे, किसी का मर्डर करेंगे, या किसी के साथ दूसरा कोई कुकर्म करेगा, तो उसके अनुसंधान में केस चल के प्रोसीजर के आधार पर हमें सजा होगी, एविडेंस के आधार पर। मगर किस प्रकार से एविडेंस लाना है, किस प्रकार से प्रूव करना है, वो प्रोसीजर है। तो सब्सटेंसिव लॉ इज बेस्ड ऑन प्रोसीजरल लॉ, कि हाउ टू प्रोसीड, प्रोसीजर क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, हाउ टू प्रोसीड आएगा। उसी प्रकार से सिविल लॉ जो है वो सिविल लॉ में भी चार प्रकार आते हैं। एक फैमिली लॉ आता है। दूसरा आता है, फैमिली लॉ में भी क्या क्या आता है? मेंटेनेंस, एडॉप्शन, प्रॉपर्टी और टॉर्टियस लॉ आता है ना, जिसमें सुखाधिकार, उसमें भी दो चीज आती है। सुखाधिकार में भी निग्लिजेंस, एक निग्लिजेंस की बात आती है, और उसी प्रकार से मेरा जो राइट है उसके अनुसंधान में आता है। टॉर्टियस लॉ न सिविल है न क्रिमिनल है, मगर उसका प्रोसीजर है वो टोटली बेस्ड ऑन सिविल। फक्त जो बदनक्षी का जो है, मानहानि जो हम बोलते हैं, उसमें भी क्रिमिनल भी आ सकता है और सिविल भी आ सकता है। तो यह हुआ सिविल बात। फिर से सिविल में फैमिली लॉ, फैमिली के साथ में प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टी के अनुसंधान में अलग अलग भाग आते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। उसी प्रकार से टॉर्ट्स में आते हैं। फैमिली लॉ में क्या आता है? मेंटेनेंस, एडॉप्शन, डिवोर्स, ये आता है। और साथ में बाकी का जो सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी में क्या आता है? प्रॉपर्टी लॉ में ऐसी बात आती है कि भाई
गिफ्ट की बात आती है, सेल की बात आती है, एमओयू की बात आती है, एग्रीमेंट की बात आती है, ये सब प्रॉपर्टी लॉ में आता है। अभी ये प्रॉपर्टी लॉ की जो बात है ने, ये जो लॉ है तो बेसिकली दो प्रकार के लॉ, ये समझने की बात है, सिविल एंड क्रिमिनल। एक सब्सटेंसिव लॉ एंड प्रोसीजर, उसी प्रकार से सिविल में भी सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल। तो सिविल में ये 4 लॉ आए, ये जो लॉ आए उसके आधार पर आज देश में क्या चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ने पूरा भारत का सब चीज बदल जाएगी। हम भारत में ऐसा कहते हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ऐसा कहते हैं ना। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, अलग अलग प्रकार के धर्म है, संप्रदाय है, अलग अलग प्रकार की जाति विशेष है, अलग अलग प्रकार की बोलियां है। हम क्रिमिनल में तो ऐसा कहते हैं कि किसी ने मर्डर किया, ये समझने की बात है। अगर किसी ने मर्डर किया तो उसकी सजा क्या, फांसी होगी, चाहे हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, पारसी होगा, यहूदी होगा, कोई भी होगा तो एक ही सजा होगी ना। तो फिर अगर क्रिमिनल में क्राइम करते तो सबको एक ही सजा है, तो जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ डिफरेंट क्यों? अब बारी आएगी, ये तो ध्यान में करें बेसिक डिफरेंस, क्रिमिनल लॉ तो एक ही है। अब महत्व की बात आती है कि सिविल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, मोमेडन लॉ, जैसे क्रिश्चियन का आएगा, पारसी का आएगा, यहूदी का आएगा, हिंदू में बौद्ध, सिख, जैन, ये सब आ जाते हैं। अब जब ये आते हैं, मैं हिंदू हूं तो मुझे एक ही शादी है, मुस्लिम है 4 शादी है। अगर मुझे डिवोर्स लेना है तो मुझे कोर्ट से ऑर्डर लेना है। अगर कोई मुसलमान को ऑर्डर लेना है, अभी तक भारत में चल रहा था तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद इद्दत, महर का पैसा देना, 3 महीने तक इद्दत में बैठे हैं तो महर का जो पैसा देना, वो थोड़े बहुत पैसा देके रख रखाव का जो बोलते हैं, खत्म हो गया। मगर दूसरे लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में भी मेंटेनेंस देना है, यहूदी और पारसी लॉ में भी मेंटेनेंस देना है। क्रिश्चियन लॉ में तो यहां तक है, अगर मेरी शादी, अथवा मैं क्रिश्चियन हूं, मेरी शादी कोई क्रिश्चियन के अलावा कोई हिंदू लड़की से हुई, या कोई मुस्लिम से हुई, या यहूदी पारसी से हुई, तो मुझे सबसे पहले उसके खिलाफ अगर डिवोर्स करना है तो प्रायर परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट, उसके बाद में मैं डिवोर्स फाइल कर सकता हूं। दिस इज द क्रिश्चियन लॉ। मुस्लिम में तलाक तलाक तलाक, ट्रिपल तलाक अटक गया। गुजरात में सबसे पहला स्टे अपन ने लिया, उसके बाद हाईकोर्ट तक गया, जो सायरा बानू केस सब जो हुआ अभी 2017 में आया, फाइनल हो गया। मगर आज भी ट्रिपल तलाक पर बैन नहीं है, सिर्फ बैन इतना ही है, तलाक 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 खत्म, ये बंद हो गया है। मगर आज मैं तलाक कहता हूं, 15 दिन के बाद कहता हूं और 1 महीने के बाद कहता हूं, तो इट इज वैलिड इन मोमेंट लॉ, शरीयत के आधार। दिस इज द लॉ। अब अगर कोई मुस्लिम लड़की है, वो उसको एक केस आया था, जो मैंने सबसे पहला जो मैंने स्टे लिया, उसमें ये समझने के लिए बता रहा हूं, मैंने सब्जी रोटी बनाने की जगह शाम को दाल चावल बनाया। मेरे खाविंद को पसंद नहीं था, दाल चावल बनाया, अक्ल नहीं है, पता नहीं है, मुझे एक चाटा मारा, साले आज से तुझे निकाल देता हूं, तलाक तलाक तलाक, खत्म हो गया। उसकी गलती क्या? सब्जी रोटी की जगह उसने पूछा नहीं क्यों ये बनाया। उसका कारण ऐसा था कि वो जो लड़की थी खुर्शीदा, उसके सास ससुर की तबियत खराब थी और उनको लेकर अस्पताल गई थी, और अस्पताल से आने के बाद टाइम नहीं था, इसलिए दाल चावल पका दिया। और डॉक्टर ने भी कहा था कि सास ससुर को दाल चावल खिलाना है, तो उसने सोचा सबके लिए बना देना। उसका बदला क्या मिला? तलाक। केस हुआ,
पूरा केस रखा गया क्रिमिनल फरियाद की। मेरे को कोर्ट पुलिस ने ऐसा कहा कि इट इज इन द नॉट इन लॉ, क्रिमिनल फरियाद नहीं होगी, आप कोर्ट में जाओ। मैं बड़ौदा फैमिली कोर्ट में गया, वहां से स्टे किया कि ऐसी स्थिति में नहीं दे सकते हैं। उसके सास ससुर लड़की के साथ थे, समझना, सास ससुर ऐसा कह दिए ये जो मेरी पुत्रवधू है उन्होंने हमारे कारण ये किया, मेरा बेटा गलत है, मगर अकॉर्डिंग टू द मोमेडन लॉ इज वैलिड। अभी उसको भी गलती का एहसास हो, मगर शादी करने की अब क्या करें, विडो तो हो नहीं सकता है, इसलिए तय किया हलाला करना। लड़की ने बोला मैं हलाला नहीं करूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है। हलाला मतलब पता है ना कि अगर एक दफे डिवोर्स होता है और उसी खाविन से, उसी पति से फिर से शादी करनी होती है, तो दूसरे किसी के साथ शादी करना, एक रात उसके साथ गुजारना, उसके दूसरे दिन उसके साथ तलाक करना और तीसरे दिन ओरिजिनल हस्बैंड के साथ शादी करना, यह हलाला है। लड़की ने बताया मैं हलाला नहीं करूंगी, मेरा कोई कसूर नहीं। हमने स्टे लिया, आखिरी में समाधान हुआ जो हुआ फिर मैटर में। मगर अब मैं आ रहा हूं यही मुद्दे को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं, समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोड का मतलब एक्ट, नियम, नीति, नियम, जो भी बंधन, संविधान, जो भी जिस प्रकार से हम उसको फॉलो करते हैं। सिविल का मतलब क्या, सिविल का मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि दीवानी, यहां नागरिकता, नागरिक। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और वो भी हमारे जो हमारे आर्टिकल में कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए, हमारा जो आर्टिकल है उसमें अगर जाते हैं तो हमें ध्यान में ऐसा आता है कि आर्टिकल 14 में कहीं कहते हैं कि एक दूसरे के साथ, एक तरफ ऐसा कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, 25 में जाते हैं तो ऐसा कहते हैं हर एक को अपने धर्म के मुताबिक जीने का अधिकार है, कहते हैं। तो अगर जीने का हर एक को अपने धर्म के मुताबिक अधिकार है तो क्या 25 आर्टिकल 44 के हुआ कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं? देन हमारा बंधन कैसा है? हम ऐसा कहते हैं कि हमारा बंधन सर्वश्रेष्ठ है, और वाकई में हमारा बंधन सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, मगर हमारे जो पॉलिटिशियन है उन्होंने ये बंधन को तोड़ मरोड़ कर उसको पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुद्दुकल के केस में ऐसा कहा। अब भारत की परिस्थिति ऐसा है कि उसमें समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, उसके ऊपर बहस करना चाहिए। मैं आज के आयोजकों को अभिनंदन देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बताई है, और सुप्रीम कोर्ट 1985 से कह रहा है कि भारत में समान यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहस होनी चाहिए। लॉ फैकल्टी के बीच में जब ये सब्जेक्ट आया है, बहुत बढ़िया बात है, अभिनंदन है। एटलीस्ट आपको पता तो चला यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। बाकी पॉलिटिशियन क्या कहते हैं। अभी मेरे को ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़की, क्रिश्चियन लड़की, तीन तो है, लड़की ही है ना, स्त्री है ना, और हम कहते क्या है आर्टिकल के तहत इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक जेंडर इक्वालिटी की भी अभी तो चल रही है बात, चल रही है। तो
हिंदू लड़की को जो लाभ मिलता है मेंटेनेंस, वो मुस्लिम को क्यों ना मिले? हिंदू लड़की को अगर प्रॉपर्टी में 50 जो भी उसका भाग है, शेयर है, उसका भाग मिलता है, तो मुस्लिम लड़की को भी मिलना चाहिए ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ। स्त्री तो स्त्री ही है। क्रिश्चियन लड़की को भी मिलना चाहिए, उसमें प्रॉपर्टी में लाभ मिलता है, मगर डिवोर्स में उसको हाईकोर्ट पे जाना पड़ता है। भाई, तो उसके लेकर एक बहस चली है, शुरू हुआ है। तो अब ऐसा लगता है आपको कहीं पर भी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वो कहीं पर भी हिंदू की तरफ या मुस्लिम के विरुद्ध में है? अगर अकॉर्डिंग टू द अवर आर्टिकल ऐसा कहेंगे भारत में रहने वाले सभी नागरिक एक है, तो सबके लिए सिविल लॉ भी एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जो सबके लिए एक होना चाहिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, तो बाकी के लोग क्यों नहीं मानते हैं? जो मैंने शुरुआत में कहा, पॉलिटिकल लाभ। अभी गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमेटी गठन कर दी, रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में। भारत में एक ही प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है, वो पता है आपको? सिर्फ गोवा में। क्या गोवा में बहस नहीं हुई होगी? गोवा में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है क्या? है। अगर वहां जो इक्वालिटी की आती है बात, तो यहां क्यों नहीं? पूरे भारत में क्यों नहीं? क्या हम सब साथ मिलकर लॉ के स्टूडेंट सब साथ मिलकर उसके ऊपर मुहिम चला सकते हैं क्या? चला सकते हैं। हमने शुरू किया है। इसके लिए एक YouTube चैनल भी बनाई है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें दूसरे भी सब्जेक्ट लिया है, यही भी, उसमें कमेंट भी डाल सकते हैं आप। कमेंट करनी चाहिए। आगे आते हैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने बात की। मेरे को यह बताओ कि क्या हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? क्या हो सकता है? कर सकते हैं? हाँ क्या ना तो बोलो। नहीं कर, क्यों? क्यों नहीं कहा? तो क्यों? बात सही है, नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यापक स्तर पर हमारे देश में उसकी बहस नहीं हुई। जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी तो पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। कांग्रेस कहेगी ये मुस्लिमों के विरुद्ध में है, मुस्लिम शुरू हो जाएंगे कि हमारे विरुद्ध में ये थोपना चाहते हैं, शरीयत के विरुद्ध में है। क्रिश्चियन भी कहेंगे। ये सबके पीछे का कारण क्या है? हर एक जगह पर ऐसा है, देखो समझना, ये हर एक जगह का कारण एक ही है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। भारत के अंदर हिंदू लोग ऐसा मानते हैं कि मैरिज एक संस्कार है, मानते हैं? लग्न एक संस्कार है, क्यों मानिए सर? मुस्लिम क्या मानते हैं? मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्रिश्चियन क्या मानते हैं? वो भी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। मगर वो कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है? वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक का है जब तक जो स्त्री नामक जो चीज है, समझना, मैं समझ के बोल रहा हूं, उसका संपूर्ण रीत से उपभोग न हो जाए तब तक का कॉन्ट्रैक्ट है। जब मैं सेटिस्फाई हो जाता हूं तो मैं उसको डिवोर्स दे सकता हूं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है क्या? मगर सबको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है।
अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसंधान में हमें यह भी पता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे वहां तुरंत कानून को में बदलाव लाना हो तो बदलाव कैसे लाते हैं? पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, वहां बहस होगी नहीं। जब तक वो बहस पूरी नहीं हो सकती तब तक कानून में बदलाव नहीं आ सकता है। और उसके लिए हमारे वहां हम लोगों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि कानून में बदलाव आए, ऐसे लोगों में जागृति आनी चाहिए। क्योंकि अगर मुस्लिम समाज ऐसा मानता है कि हमारा जो धर्म है और हमारा जो कानून है वो शरीयत के आधार पर हम जीने वाले हैं, और शरीयत की जो बात है उसके अगेंस्ट में हम नहीं जाएंगे, मगर उसमें भी बहस तो छिड़नी चाहिए, जैसे ट्रिपल तलाक में हुआ। अगर ये बहस छिड़ती है तो वहां भी समझने वाले लोग आज भी मौजूद है। अगर ये समझ सबको आती है तो उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि पहले भारत में सती प्रथा थी क्या? नहीं थी। सती प्रथा थी ने, राजा राम मोहन राय ने उसके खिलाफ 10 साल आंदोलन चलाया। समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए किसी एक व्यक्ति को आगे आना पड़ता है उसी समाज से। तो वहां भी अगर उसी यही मुद्दे को लेकर अगर सायरा बानू न होती तो ट्रिपल तलाक आता? नहीं आता। अगर उसी प्रकार से शाहबानू केस सबको पता है, 125 सीआरपीसी में आता है, हम पढ़ते भी है। हमारे वक्त तो शॉर्ट नोट आती थी, उसकी हर एक एग्जाम में लिखना होता था। ये शॉर्ट नोट फिक्स होती थी। आपकी अभी ये टाइम में है कि नहीं आई डोंट नो, शायद अभी ट्रिपल तलाक आ गया होगा उसकी जगह। मगर शाहनवाज बानू के उस टाइम में 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस दिया जाता था, मगर उन मुसलमानों ने ऐसा कहा, शाहनवाज बानू के हस्बैंड ने, कि हम 25 के अंतर्गत नहीं आते हैं, हमें जो भी देना है वो वक़्फ़ के द्वारा दिया जाएगा। और उस वक्त की राजीव गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, वो दब गई। उन्होंने पूरा लॉ बदल दिया, मुस्लिम महिलाओं को नुकसान हो गया। मगर एक शाहबानू खड़ी होने के कारण पूरे देश में इसकी बहस हुई। शायरा बानू के खड़े होने के कारण ट्रिपल तलाक पर बहस हुई। तो क्या हम समान सिविल कोड की जो बात करते हैं उसमें अगर कोई बदलाव लाना है तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक उस दिशा में आगे बढ़ नहीं सकते, यह स्पष्ट है। उसके बाद समान सिविल कोड का लेकर जो भी सांप्रदायिक धार्मिक नेतागिरी है, उन लोगों को भी खुद का बहस छोड़ के सभी को मैदान में आना पड़ेगा। और ये काम कौन करा सकता है? लॉ के स्टूडेंट, हर एक धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए जो लॉ के स्टूडेंट है, अगर वो खुद शुरू करते हैं ये बात, तो पूरे देश में ये सब्जेक्ट पर बदलाव आ सकता है। बदलना क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या आएगा, क्या बदलाव होगा? सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट्स है, उसमें बहस करके बदलाव, किसी के कानून को, किसी के धर्म विशेष के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बदल नहीं करना है, मगर जो रेमेडी है उसमें बदलाव लाना है। और उसके लिए बदलाव कौन से में आएगा? सिविल में भी, एडॉप्शन में आएगा। जैसे कि
एक गिफ्ट है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी तो उसके जितने बेटे बेटियां होगी सब में बराबर का हिस्सा होगा, बेटियों का भी होगा। और मुस्लिम में शरीयत के मुताबिक जिस प्रकार से पत्नी का, दूसरी पत्नी का, तीसरी पत्नी का, पहली पत्नी का बेटे का, दूसरी पत्नी के बेटे बेटी का जो पॉइंट भाग रखा है उस प्रकार से होगा। या तो वो मुस्लिम जो करता है वो तय करेगा कि मुझे इसको देना है, वो दे सकता है, रास्ते चलने वाले को भी दे सकता है। इतना डिफरेंस। अगर बेटा ऐसा कहेगा पापा आपने उनको दे दिया, अब्बा जी उनको दे दिया, हम मुझे नहीं दिया, तो क्या मेरी मर्जी थी, तेरे को नहीं दिया। जब हिंदू में और क्रिश्चियन में बराबर का जो हिस्सा है, राइट है, बेटे बेटी को देना पड़ता है। तो कोई भी मुसलमान लड़का होगा, बेटी होगी, उसको भी ऐसा होता होगा कि मेरे पापा की, मेरे अब्बू की प्रॉपर्टी मुझे भी मिले। होगा कि नहीं होगा? अगर किसी को दे दिया थर्ड पार्टी को, चलेगा क्या? ये प्रॉपर्टी यानी गिफ्ट किसी को भी दे सकता है। इसमें भी इक्वालिटी आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्योंकि बेटे तो बेटे ही है, बेटी तो बेटी ही है, दोनों जगह पर। तो हिंदू बेटे बेटी में उनको देते हैं, तो मुस्लिम में क्यों नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये भी एक है। एडॉप्शन में भी ऐसा है, मेंटेनेंस में भी ऐसा है, डिवोर्स में भी ऐसा है। ये फैमिली लॉ, यानी बदल कहां लाना पड़ेगा? तो सबसे पहले फैमिली लॉ में, दूसरा प्रॉपर्टी में। जैसे मैंने कहा किसी को भी दे सकता है अभी। और चौथी बात आएगी टॉर्टियस लायबिलिटी में। कि अगर हमारे कायदा कैसा है टॉर्ट्स में, अपने अकॉर्डिंग टू आईपीसी 7 साल से छोटा बच्चा होता है, अगर वो क्राइम करता है तो उसको सजा होगी क्या? उसके खिलाफ एफआईआर होगी क्या? नो। किसके खिलाफ एफआईआर होगी? जो 7 साल से बड़ा हो, उसके माता पिता के खिलाफ। उसके माता पिता के खिलाफ होगी। क्यों? कि माता पिता ने ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर वे ऊपर के वो 7 साल का बच्चा छत पर खड़ा है, ऊपर से कोई पत्थर नीचे डाल देता है और किसी के सर में लगता है और वो मर जाता है या बेहोश हो जाती है और उसको सर्जरी करानी पड़ती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? पेरेंट्स। व्हाई? बच्चे को तो अक्ल नहीं है, बच्चा ऐसा कर, तो माता पिता क्या करेंगे? माता पिता, पिताजी तो सर्विस पर है, अब तो माँ भी सर्विस में है, दादा दादी या तो आया के भरोसे है, तो माता पिता पर क्यों? भाई माता पिता ने ध्यान क्यों नहीं रखा? इसमें भी कुछ यूनिफॉर्मिटी, कुछ नियम बनना चाहिए सबके लिए एक जैसा। बच्चे पर केस नहीं हो, समझ सकता हूं मैं, मगर कुछ तो यूनिफॉर्मिटी बननी चाहिए। ये ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है जो हमारा कानून है, जो हमारी विधि है, उसके नियम में फेरफार करके इक्वालिटी बिफोर लॉ, और हर एक सब्जेक्ट में, हर एक बात में जो सिविल का है, अगर क्राइम में एक जैसा लॉ है तो सिविल में क्यों नहीं? ये मेन बात है। इसको ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो सब्जेक्ट है, मोटी मोटी बात आपसे करी है। अगर उसको डिटेल में चर्चा करनी है तो और 2 दिन 4 दिन 5 दिन का बिल्कुल सेमिनार इसके ऊपर हो सकता है, अलग अलग लोग अलग अलग कह सकते हैं। मगर आज की परिस्थिति, समय की मर्यादा, और मुझे भी कोर्ट में पहुंचने का है। Give me a mic.
किधर अगर तो पोपट एक वुमेन डिवोर्स कर ले रही है, उसके बाद तो वो भी फ्री विल है, वो खुद कमाए खुद खाए। बराबर है। That's आप रहो। क्या किसी और का प्रश्न? हाँ बोल दो साथ में ले लेंगे सबने। सर मेरा ये था कि सब कुछ मिला के यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेन पर्पस, मुझे जहाँ तक अभी आपने उतना एक्सप्लेन करा, तो ये समझ में आया कि इक्वालिटी फॉर वुमेन भी होना जरूरी है। हमारा पूरा लाइक बैक स्टेज पे सब कुछ दिख रहा है कि औरतों के लिए उनकी प्रॉपर्टी, उनके लिए सब कुछ होना चाहिए। तो मेरा ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले अगर हम वुमेन्स को ज़्यादा एजुकेट करें, जो कि मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज या फिर इवन पार्लियामेंट्स में और कोर्ट में उनका होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इमोशनली चीज़ें अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर चीज़ों को इमोशनली अगर लेंगे आप कि हाँ उनके साथ भी बुरा होता है, तभी वो चीज़ें इवॉल्व होंगी। अगर हम ऑन पेपर पे ही बस ये सब चीज़ें देखते रहें कि हाँ उनके साथ ये हो गया वो हो गया। शायरा बानो का केस जब आया 2017 में, उसी वजह से ही तो चेंज आया ट्रिपल तलाक में। देयर इज़ अ वुमेन, इस वजह से। तो मेरे हिसाब से लड़कियों को ज़्यादा एजुकेट करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंडिया में, रेदर देन यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आए हुआ है। क्योंकि बैक स्टेज पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का यही काम है कि उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। आपकी बातों से भी मुझे यही पता चला कि उनको प्रॉपर्टी में इक्वालिटी, बेटा बेटी हो या फिर मुस्लिम्स में या फिर हिंदूज में, मेन पर्पस उनका है कि सबको इक्वालिटी मिले। तो मेरा यही है। धन्यवाद। मुझे जो कहना था यही आपने कह दिया, बहुत बढ़िया बात है। महत्व की बात ऐसी है कि जो आपका क्वेश्चन था कि उनको फिर क्यों मेंटेनेंस मिलता है, और आपका कहना है सबको मिलना चाहिए। दोनों का अगर मिला ले, सही बात तो ऐसी है कि हम सबको एजुकेट होना है, आपको और मुझे भी। हम ऐसा मानते हैं आज भी, कई समाज में कई लड़के ऐसा मानते हैं कि मेरी बहन को शादी में सब कुछ दे दिया है, अब उसको प्रॉपर्टी में भाग क्यों देना। हम भी कहते हैं, हम पुरुष ही कहते हैं, कहा कि जेंडर इक्वालिटी। मगर हमारे देश के अंदर, और हमारे देश नहीं हमारी संस्कृति के अंदर, भारतीय संस्कृति में हर हमेशा स्त्री को पुरुष से बड़ा बताया है। आज हमारी कमनसीबी है कि हमारे देश के अंदर औरतें, लड़कियां ऐसा मानती है कि हमें पुरुष के बराबर होना है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। उसका बेसिक रीजन ऐसा है कि हम पहले से मानते हैं, आज भी मानते हैं और कल भी मानना पड़ेगा हमें, स्त्री हमेशा पुरुष से ऊपर है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है राधे कृष्ण, हमारे यहां कहा गया है जय श्री राम, सीताराम, ऐसा हम कहते हैं। अगर जो स्त्री पुरुष से दबी हुई होती, ये जो बात आई है ना, ये सब चीज आप इतिहास देख लो। मुस्लिम आक्रांताओं के पहले कभी भी भारत के अंदर स्त्री का स्थान नीचे नहीं था। स्त्री हर एक जगह पर पुरुष को सलाह देने वाली होती थी। आप देखना कहीं पर भी राजा महाराजाओं के दरबार में भी स्त्रियों का एक स्थान था। मगर जो बाहर के आक्रमण करने आए भारत में, उसके बाद भी यह परिस्थिति में बदल आया है, क्योंकि हर जगह पर स्त्रियों पर रेप शुरू हुआ, स्त्रियों को उठा के ले जाने लगे, स्त्रियों को बेचना शुरू हुआ। तो हम लोगों ने स्त्रियों को बचाने के लिए बुरखे में डाल दी, घूंघट में डाल दी। उसका परिणाम यह हुआ कि जेंडर इक्वालिटी में हम सोचने लगे। वास्तव में तो ऐसा है कि नारी तू नारायणी, एक सावित्री थी जो यमराज के पास से खुद के पति को वापस लेके आती है। ये हमारे देश में हो सकता है, हमारी संस्कृति में बताया गया, और किसी संस्कृति में नहीं है। ये आपके प्रश्न का जवाब और आपकी जो बात है उसमें ऐसा आता है कि डिवोर्स में आज लड़कियां पढ़ती है, लिखती है, सर्विस करती है, पहले ऐसा नहीं था। आज भी मेरे को ये बताओ, जो स्त्री काम करती है, काम धंधे प्रोफेशनल स्त्री है,
सर्विस करती है, घर आके उसको रसोई नहीं बनानी पड़ती है क्या? एक। दूसरी बात, मैं पुरुष हूं, आप भी पुरुष हो, यहां बैठे हुए सभी पुरुष ऐसा सोचते हैं कि नहीं, खाना तो मेरी मां ही बनाएगी, मेरी बहन ही बनाएगी, मेरी पत्नी ही बनाएगी, चाय तो माँ के हाथ की ही पीऊंगा, मेरी पत्नी के हाथ की, मेरी बहन के हाथ की ही पीऊंगा। हम कभी बनाते हैं क्या? हम बना के कहें नहीं मैं ही बनाऊंगा चाय, ये मेरा धर्म है, ऐसा हम कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे ऐसा कहीं पर नहीं। कदाच एक आध लाख में कदाच एक आध ने कह दिया, अलग बात है। वो कोई मूवी आया था ना अर्जुन कपूर वाला, क्या वो, हाँ पीएम का, ऐसा कोई करोड़ों में एक आध होगा कि वो मंगलसूत्र पहन के घूमने लगे, हम नहीं पहनेंगे। ये जो मेंटालिटी है, क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार से जिस कल्चर में हम घूम रहे हैं उसमें पुरुष प्रधान समाज है। हाँ, आसाम में जाओ, कामाख्या देवी के जो विस्तार है, काम प्रदेश जो उसको पुराण में कहते हैं, वहां आज भी बेटे के पीछे मां का नाम लगता है। वहां जाओ तो वहां औरतें काम करती है और आप और मैं घर का ध्यान रखते हैं। वो हर एक प्रदेश है, इसीलिए तो कहते हैं अनेकता में एकता भारत की विशेषता। अपनी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चरल वाले लोग हैं, मगर कहीं पर भी आज भी ये चलता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, मेंटेनेंस इसलिए देना पड़ता है और देना चाहिए कि जहां पढ़े लिखे हैं, सर्विस करते हैं और अच्छी तनख्वाह है, वहां नहीं देना है। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। मगर जहां पर औरतों को घर में रखकर सिर्फ काम करने वाली बाई की तरह जब ट्रीट करते हैं, तो जब डिवोर्स की बात आती है, उससे 2-3 बच्चे पैदा कर लिए, उसके बाद उसको निकाल देते हैं। अभी मेरे पास एक मैटर आई है, आपको सुनकर अपने को शर्म आती है। 35 साल के शादीशुदा जीवन के बाद डिवोर्स के लिए आए हैं और वो औरत ने 35 साल सिर्फ किचन में लगाए, सबको संभालने में लगाया। और उसकी गलती क्या है? उसकी गलती ऐसी है कि जितना पति अंग्रेजी में बोलता है उतना अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। उसके दोस्तों के सामने, उसके ऑफिसर के सामने ऐसा लगता है कि गंवार है। तो इसको एलिमेंट नहीं मिलनी चाहिए। डिवोर्स की बात अगर पति करता है तो मिलनी चाहिए। मगर ये भी एक बड़ा बहस का सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट उस लाइन पर भी जा रही है। नामदार सुप्रीम कोर्ट ने कई किस्सों में ऐसा कहा है कि किसको डिवोर्स, किसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। उसको लेकर भी अपने देश में लॉ फील्ड में अलग अलग हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर चल रही है क्या, और उसके ऊपर पीआईएल भी हुई है। उसी प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी पीआईएल हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में 5 पीआईएल हुई और वो पीआईएल सबको क्लब कर लिया और एक पीआईएल चल रही, शायद 24 तक उसका रिजल्ट आएगा। इस एंडिंग में या 24 के शुरुआत में शायद आ सकता है, क्योंकि उसकी बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। और सभी ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, कि आपका क्या कहना है। और हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट से भी जवाब की डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली स्टेट को कहा है, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग स्टेट से भी कहा कि आपका क्या मानना है, आपका वहां का रिव्यू दो। तो इस प्रकार से अपने देश में बहस चल रही है। आगे के दिनों में ये बहस और बढ़ने वाली है। आज के मैं आपने ये सब्जेक्ट रखा लॉ के स्टूडेंट के बीच। मैं आप सभी लॉ के स्टूडेंट को ऐसा कहता हूँ, हमको भी हमारी जो भी राय है हमें कमेंट करनी चाहिए उसके ऊपर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे नाम से चला रहा हूँ, नीरज जैन एडवोकेट। उसके ऊपर ये आज का जो भी सब्जेक्ट है यूट्यूब पर जाने वाला है, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस जो आपको मन आए कर सकते हैं, मगर करनी चाहिए। और इसको एक बहस का मुद्दा इस देश में बनाना चाहिए। और अभी तो गुजरात के अंदर चुनाव का माहौल है। जो भी आपके पास आए वोट मांगने को, उनको पूछना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको क्या कहना है। पता तो चले कि जिनको हम वोट देने वाले हैं उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट लेकर आज ये जो कार्यक्रम रखा, और मुझे
बुलाया गया, मुझे जितना भी थोड़ा बहुत जो ज्ञान था वो आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। आपने जब पूरा एक्सप्लेन किया तो आपने कहा कि लॉ स्टूडेंट है हम, तो हमारा रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप उस चीज़ को एलाबोरेट करेंगे कि अगर हमें ये चीज़ नहीं लगती तो हम किस तरह से कंट्रीब्यूट करें? गुड गुड। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि आप कमेंट शुरू करो। फेसबुक, सोशल मीडिया बहुत प्रभावी मीडिया है, तो हम सब सोशल मीडिया पर भी शुरू करें। हमारे जितने ग्रुप हैं उस ग्रुप पे भी ये सब डालें, और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, उसको भी सब में डालें। उसके आज शाम तक आ जाएगा, कभी कोर्ट में जाऊंगा, बाद में ऑफिस जाके कर दूंगा। मगर ये सब्जेक्ट को व्यापक रूप से बहस करना चाहिए। एज ए लॉ स्टूडेंट हमको आप इसमें से अखबार कौन कौन पढ़ता है? न्यूज़पेपर कम लोग पढ़ते हैं, ठीक, मगर जो भी पढ़ते हैं लेटर्स टू दी एडिटर का एक कॉलम आता है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी अखबार हो, तो उसमें भी अपने को एक लेटर लिखना चाहिए, और कहीं भी छोटे छोटे ग्रुप बनाकर भी अलग अलग फैकल्टियों में भी सबके सामने ले जाना चाहिए। ये करेंगे तो ये बहस व्यापक स्तर पर होने वाली है। और आप सबका खूब खूब धन्यवाद कि मुझे शांति से सुना एक, और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए भी सबका खूब खूब धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you so much, audience, for hearing us aloud. I would just like to correct one of the statements given by Riddhi. Sir fought his first case on 2002, not the judgment. And due to that case, gun firing was done on it. Sir has been practicing criminal advocacy since 32 years. He has got his sanat in 91. He is a very impeccable personality. Thank you so much, sir, for sharing your words of wisdom with us. And I would like the audience to give a huge round of applause for sir. Now the students would like to give a book of 75 years of DA Yatra as a memento. So I would like to request Karishma Ben to give the memento to the sir. Some of the seminars. Namaste and good afternoon to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's event a resounding success. First and foremost, I thank our special guest, Advocate Dheeraj Jain sir, a renowned advocate and vibrant personality, who despite his busy schedule has found time to grace this event. He has put such a complex topic in such a comprehensible and rational manner. I thank our OSD madam, Uma Iyer madam, and our other teaching staff for their unstinted support for this function. I also owe gratitude to the non-teaching staff for their support to ensure that this event becomes successful. My sincere thanks to all the distinguished invitees present here. Last but not the least, I thank you, my friends, for your cooperation in making this function a resounding success. Let me again, at this closing instance, thank you all for having joined. Your participation has made this seminar a successful event. Thank you. Thank you to all.